So let's start for this session. So what are we going to refer for this particular lecture, right? So there is one book that you must all are referring, Public Administration by E.M. Lakshmikant. Then the Public Administration in a Globalizing World, Theories and Practices by Vidyut Chakrabarty and Prakash Chand. These two are the main theoretical books that we are going to refer for this session, right? Then there is an encyclopedia of public administration and public policy, not that relevant, but for conceptual clarity. And also, while analyzing all these things theoretically, we are also going to look towards previous year asked questions, right? So for that, Team Prabhat, NTA, JC NET, JRF, Set Political Science, right? So these are the major books that we are going to refer in this session. Before starting, I would like to request you all to please subscribe to my channel and also share the link to your all friends and colleagues and other classmates. So let's begin. So we are going to divide this session in two parts, right? One is part A. There we are going to discuss theories and approaches to public administration. So in that, defining public administration, initially, then stages and paradigms, then the scientific management theory and Taylor, right? Then the classical organization theory, in that the Fayol, Urvi, Gulick and MP Follett. Then the bureaucratic theory of Weber, then the public choice theory within that, then the post bureaucratic theory, the human relation theory. Within human relation theory, specifically Elton Mayo and his other major theories, and then the Chester Bernard and theory of organization, decision making theory of Herbert Simon, Frederick's ecological approach, socio-psychological approaches, theories within that, the motivational approaches, leadership models, etc., etc. Then the new public administration, new public management, and the new public services, right? So this is going to be our part A. Then in part B of this session, we are going to discuss some of the major concepts in the public administration, like good governance, post-scope, organization, communication, control, leadership, motivation, hierarchy, unity of command, span of control, authority and responsibility, coordination, centralization, decentralization and delegation, supervision, line and staff, public and private administration, then the some mixed one-liners and the major books. So within this part, we are going to discuss these major concepts. So these thinkers are, we are going to visit these thinkers within two parts also. So these thinkers will be there in your theoretical section also, and while discussing these theories also, we will revisit them, right? So this is going to be our session. So let's start the defining public administration. So in 2012 of June cycle and 2019 December cycle, they directly asked who defined public administration by this like, so by Waldo, and in 2012 June, Seman, right? Herbert Seman का जो definition था, by public administration is meant to common usage the activities of executive branches of the national, state and the local government. ये जो definition था वो पूछा गया था. So you can have this screenshot, right? What is public administration? You know that the Woodrow Wilson is known as the father of public administration, and how he defines the public administration. Public administration is a detailed and systematic execution of law. Every particular application of law is an act of administration. ऐसा ये कहता है. Then he further says the administration is the most obvious part of the government. It is the government in action. It is the executive, the operative, the most visible side of the government. So L.D. White भी define करता है, Gulick define करता है, Simon Hay, then Pfizer, then Walker, then Wilby. So these are all definitions. You can have a screenshot or you can visit the M. Lakshmikant for this particular section. Then there are some stages of evolution, right? The stage one is known as the politics and administration dichotomy, right? So they both having the dichotomy in between 1887 to 1926. So Woodrow Wilson will visit here, right? 1887 to 1926. ये जो स्टेज था पब्लिक एंड पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी का, वो कौन सा स्टेज था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के जनवरी सेशन में. सो दैट वाज द स्टेज वन. Then the stage 2 is the principles of administration 1927 से 1937 तक. Then the stage 3 is the era of challenge. Public administration was challenged as a separate discipline.
1938 से 1947 तक. Then the crisis of identity was known as the stage 4, 1948 से 1970. So crisis of identity में हमें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक मैनेजमेंट वगैरह वगैरह मिलते हैं. देन द पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, राइट, न्यू पब्लिक सर्विसेज का जो पर्सपेक्टिव आता है 1971 से कंटिन्यूइंग जो है स्टेज 5. So these are all stages of the evaluation. They can ask particularly any stage or the match the following, etc. So be serious regarding this. Then the Nicholas Henry has described the 5 paradigms in the intellectual development of the public administration. Nicholas Henry कैसे define करता है कि 5 paradigm में वो divide करता है. Paradigm 1 was the politics administration dichotomy, 1990 से 1926. Then the paradigm 2 is the principles of administration, 1927 से 1937. Then the paradigm 3 is the public administration as a political science, 1950 से 1970. Then the paradigm 4 is the public administration as administrative science, management, 1956 से 1970. Then the paradigm 5 is the public administration as a public administration, 1970 से present. Right. So Robert T. Galbinski noted that the 4 pages in historical development public administration, वो कौन सा है? Analytical politics administration, then the concrete politics administration, then the science of management and public policy approach. So these are all phases, paradigms and stages. You should know that. So again the same thing. So here particularly these are phases we already gone through, and these are all paradigms of Henry, right? So within second paradigm, that is the principles of public administration का जो paradigm था, उसमें हमें ये theories मिलती है, period of orthodoxy, science management, bureaucracy, post gov, administrative responsibility वगैरह वगैरह. Then the challenge का जो paradigm था, उसमें हमें informal organization and administrative behavior का theories मिलते हैं. Then the paradigm 3 जो था ना, public administration as a political science, 1950 से 1970 में, तो comparative public administration and developmental administration ये concepts हमें यहाँ मिलते हैं. Then the paradigm 4 जो है public administration management, 1957 से 1956 से 1970 के बीच में था. And then the paradigm 5 is a public administration as a public administration. इसमें हमें new public administration, reinventing government, new public management, new public service, ऐसे कुछ approaches concepts मिलते हैं, right? So these are some one-liners that has been asked previously, like who among the following question the claim of public administration as a science. Public administration को science कहना ही किसने क्वेश्चन किया था? 2013 के दिसंबर में ये क्वेश्चन आया था, right? So in the journal article published in Public Administration Review, The Science of Public Administration, 3 Problems, Robert Dahl challenged the scientific status of public administration. He said that it is impossible to exclude normative considerations from the public administration. कैसे नॉर्मेटिविटी तुम हटा ही नहीं सकते, इसलिए उसको साइंस कहना मतलब साइंस के पीछे आप भाग रहे हो, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स डील्स विद द पीपल, राइट? पॉलिटिकल साइंस. सो इन दैट रिगार्ड, हु अमंग द फॉलोइंग आर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंटीग्रल व्यू है उसमें कौन कौन है? अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल व्यू, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकन टू परस्यूट एंड टू फुलफिल द पब्लिक पॉलिसी. These activities include not only managerial and technical but also manual and clerical also. So public administration scholars like L.D. White, Henry Fayol, Gulick, etc. propagated this view of administration. So public administration in integral view, White, Henry Fayol and Gulick, right? Who among the following has created 18 definitions of public administration and put them into 4 categories like political, legal, occupational, managerial. 2014 के जून में एक क्वेश्चन पूछा गया था, Shepard and Russell. So the post 1970 phase in the development of public administration was characterized by the कि वैल्यू को फिर से ओरिएंटेट करते हैं ना लोग, क्योंकि हम नॉर्मेटिविटी वैल्यू नहीं हटा सकते, ये कह के वैल्यू को फिर से लेके आते हैं, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं. 2014 के दिसंबर में एक क्वेश्चन आया था. Then the managerial view of public administration believes that the administration compromise of the work of only those persons who are engaged in the performing managerial functions in an organization. Luther Gulick, Herbert Simon, Victor Thompson, Henry Fayol belongs to the managerial view of public administration. Managerial view of public administration हम देखा क्या है? 2017 के जून में एक क्वेश्चन आया था, सॉरी जनवरी साइकिल में क्वेश्चन आया था. Then the Herbert Simon belongs to the phase of era of challenge, मतलब जो public administration as a separate discipline जब challenge किया गया था, तो then the scientific management theory. Let's begin with the theories, right? So there are some techniques of scientific management. What are they? Like functional foremanship, standardization and simplification of work, the method study, right? The differential piece rate system, the fatigue study, the time study, the motion study. These are some
techniques, and they are going to ask you these features again: complexity, and to maximize the efficiency with the consequent economization of time and resources. These were the main reasons. So, in other words, it had revolutionized the industrial relations, right? By standardization of work procedures, and मतलब इकोनॉमिक मैन के कंसेप्ट लेके आते हैं कि अब इफिशिएंट बनना पड़ेगा, स्कैरसिटी है, ठीक है, तो टाइम और जो रिसोर्सेस है उसमें इकोनॉमाइजेशन की कंसेप्ट लेके आते हैं. So there are some principles of scientific management: the development of true science of work, the scientific selection, training, progressive development of the workman, the close coordination between the science of work and the scientifically selected trained men, and the division of work responsibility between the management and the work. So, father of scientific management theory is known as Frederick Taylor. You all know that, right? But the scientific management was coined much later by the Louis Brandeis in 1910 में उसने वो term coin किया था. You can just confirm that. A piece rate system उसका सबसे important एक book है, 1895 में उसने लिखा था. Then the shop management 1903 and the art of the cutting metals 1906. The principles of management 1911 में जो टेलर ने जो बुक लिखा था उसमें हमें ये theory मिलती है, ठीक है. So Taylor states that the scientific management is a no single element but a combination summarized as, उसके कुछ principles क्या है कि science not rule of thumb. Instead of the rule of thumb method, he was in favor of greater autonomy of the workers who would decide to the work methods among themselves and select their tools accordingly. Then the harmony and not discord. Then the cooperation, not individualism. Maximum output in place of restricted output. Development of the each man to his greatest efficiency and prosperity, right? So this includes क्या क्या include होता है इसमें? Functional foremanship, motion study, time study, piece rate system, exceptional principle, standardization of tools, right? हमने पिछले वाले स्लाइड्स में जो डायग्राम दिया था उसमें देखा है. So idea of participative management which was implicit in the advocacy of the greater autonomy of the workers. Then the economic man, driven by the purely economic interest, separation of planning and execution and greater responsibility on managers. Taylor's concept of mental revolution stands for harmony and cooperation for both labor and management. दोनों के लिए हार्मनी में रहना चाहिए, कॉपरेशन में रहना चाहिए. मेंटल रिवोल्यूशन का कंसेप्ट है उसका टेलर का, ठीक है. Send the what is the criticism? You can just have a screenshot. Criticism like हमें पता है कि इकोनॉमिक बात मैन की बात करते हैं तो सोशल साइड जो होती है उसको ही इग्नोर कर देते हैं, ठीक है. सो ये जो है मतलब impersonal and undermining the human factor, right? So behaviorists also charge that the Taylor's method sacrificed the initiative of the worker, his industrial freedom, etc., right? हार्बर्ट साइमन बेबी ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है. उसका जो साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो बाद में जेम्स जी मार्च का है उसने भी उसको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, हम देखेंगे बाद में. Then the classical organization theory, right? So in classical organization theory we have broad two streams. So one is the scientific management of Taylor, we already looked upon that. But in classical organization theory we have the administrative management of Henry Fayol, Luther Gulick and the Max Weber, right? Bureaucratic theory of Max Weber. So the major proponents of this theory are the Henry Fayol, Luther Gulick, Linda Lurvik, J.D. Munne, S.C. Raleigh, Mary Parker Follett, then R. Shelton. ठीक है. So this classical organization theory assumes that the administration is a universal structural conduct which has a universal applicability regardless of the situation and the context, and it is susceptible to the same kind of problems, right? So therefore the protagonist of this theory of the opinion that the certain universal principles of organization can be worked out facilitate the smooth functioning of organization. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, ये कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स अगर आप अप्लाई करोगे तो वो उसी तरीके से फंक्शन करता है. तो जो उनके जो की पिलर्स थे वो क्या थे कि डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, देन द स्केलर एंड द फंक्शनल प्रोसेसेस, मतलब हायरार्की वगैरह सब कुछ आएगा उसमें, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड आएगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल आएगा, देन द स्ट्रक्चर एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल हमने ऑलरेडी देखा है. सो द क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज द फॉलोइंग प्रीमाइसेस. क्या क्या प्रीमाइसेस थे, उनके एजम्पशंस क्या थे कि एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी आर द यूनिवर्सल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. To achieve efficiency and economy, there is a need to design and redesign organizational structure in such a manner that the various structural parts of an organization function with coordination and harmony. And third is, with a view to developing greater rational structures, an organization should follow certain principles
of a formal designing and redesigning various organizational parts so that the goals of maximizing efficiency and economy are achieved with the least efforts and resources, right? So there were some major principles, right, within classical organizational theory. What are they? These schools and thoughts and assumes that the administration as a universal structural construct which is amenable to a certain common principles of organization. The proponent of this approach has shown their keen interest in discovering the true basis on which the division of work in an organization should be carried out. So division of work, universal structural construct. Then the proponent of this approach, however, are not totally in oblivion of the danger of the excessive decentralizing or organization of tasks. Hence, they put a lot of emphasis on a proper coordination and organization. So, coordination and organization, division of work, universal structural construct. Then the restraint in the use of authority. Then the unity of command and direction. Then centralization of authority को भी वो support करते हैं कुछ हद तक. Then the managerial perspective उनका है, ठीक है. बट हर्मन साइमन इसको क्रिटिसाइज करता है, वो बोलता है कि होमली प्रोवर्ब्स, मिथ्स एंड स्लोगन्स एंड प्रोपोनेंट पोम्पियस आइडेंटिटीज. सो ऐसा हर्बर्ट साइमन का एक कोट भी पूछा जाता है. देन द मेजर प्रोपोनेंट वन इज फयोल, राइट, हेनरी फयोल. सो ही आइडेंटिफाइड 5 की एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, POCC, POC जिसको हम कहते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, राइट. दिस इज हेनरी फयोल. 1841 से 1925 के बीच में ये जीवित थे. देन हिज मेजर बुक्स लाइक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने 1908 में लिखा था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन 1916 में, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ स्टेट 1923 में उन्होंने लिखा था, राइट. सो फॉयल हैड रिपीटेड द पॉपुलर डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिस्टिंक्शन किया जाता है, उसको रिफ्यूट किया है, उसको रिजेक्ट किया है फॉयल ने, ठीक है. So you can type in comment section ki who are the thinkers who supported this distinction and who are the thinkers who not supported this distinction, right. So he considered the 14 principles of administration. Fayol के जो 14 principles of administration वो क्या क्या है? Division of labor 1, authority and responsibility 2, discipline 3, unity of command 4, unity of direction 5, subordination of individual interest to the general interest 6, रिम्यूनरेशन 7, सेंट्रलाइजेशन 8, स्केलर चेन इसको हम हायरार्की कहते हैं 9, इक्विटी 10, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स 11, ऑर्डर 12, इनिशिएटिव 3 एंड द एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ये जो है 14 प्रिंसिपल है उसका, ठीक है. सो टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन मोर कॉम्प्रेसिव. देयर आल्सो ही क्वालिफाइड और ही आइडेंटिफाइड द 6 क्वालिटीज ऑफ गुड मैनेजर. सो गुड मैनेजरियल क्या क्या 6 क्वालिटीज होने चाहिए. So they are the physical qualities, mental qualities, moral qualities, general education, spatial knowledge and experience. Then the Urvik and Gulick, Gulick was influenced by the Fayol के जो 14 principles से इसके Gulick influence हो गया था. ये जो Gulick है, right, Luther Gulick, and ये है Lyndall Urvik. So जो पोस्ट कॉप हम सबको पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्ट एंड बजटिंग, ये जो पोस्ट कॉप जो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक स्किल्स, काम जो फंक्शंस होते हैं, सो दीज आर दे. एंड ये किसने आइडेंटिफाई किया था? गुलिक ने आइडेंटिफाई किए थे, ठीक है. ये उनका जो बुक था ना, द पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो उन्होंने 1937 में दोनों ने मिलकर लिखा था, उसमें गुलिक ने ये कुछ आइडेंटिफाई किए थे. 2013 के जून साइकिल में क्वेश्चन पूछा गया था ये बुक के ऊपर, ठीक है. सो गुलिक आल्सो नोन बॉय फॉर हिज थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उसके मतलब और जो गुलिक थे उसके और 4P प्रिंसिपल्स है, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन. पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस. सो जो उर्विक है, हमने जो गुलिक का देखा प्रीवियस स्लाइड में, उर्विक है, उसके भी कुछ 8 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ कोरेस्पोंडेंस, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्केलर प्रिंसिपल मतलब हायरार्की, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ डिफिनेशन, राइट. एंड देन बाद में कुछ क्या करता है कि जो 3-4 थियरिस्ट है ना, कि एमपी फॉलेट है, वेग्रेंस्किस है, मोन्य है, रीले है, और बाकी के जो सब लोग हैं, उन सबके थ्योरी को अच्छे से स्टडी करके खुद के और एक बार वो क्या करता है कि 14 प्रिंसिपल्स लेके आता है, सॉरी 29 प्रिंसिपल्स लेके आता है. सो यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट. देन द मेरी फॉर्कल फॉलेट, एमपी फॉलेट, 1868 से 1933, रिगार्डेड एज द ब्रिज बिटवीन द क्लासिकल अप्रोच एंड बिहेवियरल ह्यूमन रिलेशंस. मतलब हम जेएस मिल को जैसे एक ब्रिज कंसीडर करते हैं ना, कि क्लासिकल लिबरल्स और मॉडर्न लिबरल्स के बीच में, वैसे ही क्लासिकल अप्रोच और बिहेवियरल ह्यूमन रिलेशंस के बीच का एक ब्रिज, इससे एमपी फॉलेट को हम रिकॉग्नाइज करते हैं. सो उन्होंने कुछ बुक्स लिखे थे, जैसे कि द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, द न्यू स्टेट,
क्रिएटिव एक्सपीरियंस, डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। उनका एक कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट इंटीग्रेशन, मतलब कॉन्फ्लिक्ट इज यूनिवर्सल, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको निगेटिव तरीके से नहीं देखती है, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको पॉजिटिवली देखना चाहिए और कैसे रिजॉल्व करना है उसकी वो थ्योरी देती है, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट को एज ए कंस्ट्रक्टिव देखना और कॉन्फ्लिक्ट इंटीग्रेशन की उनकी जो थ्योरी है। So conflict as a normal and unavoidable consequence of social interaction in every organization. She had preferred integration among three popular ways of resolving conflict, namely domination, compromise और integration. Domination, compromise और integration, ये तीन वेज होते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के, रिजॉल्व करने के। उसमें से वो फेवर क्या करती है, इंटीग्रेशन जो तरीका है ना उसका वो। तो डिपर्सनलाइजिंग ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्स आर रिमेंटिंग फ्रॉम एक्चुअल सिचुएशन, मतलब डिपर्सनलाइज करना है ऑर्डर्स को, ये उनका एक थ्योरी है। देन द हमने अगर पहले देखा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर की थी, और क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी मेजरली हमने अगर फ्योल देखा, तो उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस थे, राइट। सो यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट और यू कैन विजिट एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसमें ये चार्ट दिया गया है, ठीक है। सो दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस थे। देन द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, राइट। सो वेबर का जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी का जो कंसेप्ट है, पूछा जाता है कि वेबर का जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी टाइप जो कंसेप्ट था 1921 में उन्होंने जो रिफॉर्म किया था, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में उन्होंने लिखा था। सो जो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी वो रैशनल लीगल अथॉरिटी के ऊपर बेस है, ठीक है, ये याद रखिए। और उनके जो अथॉरिटी के तीन कंसेप्ट है, ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक एंड रैशनल लीगल। हमें पता है कि ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशन से जो इवॉल्व होता है, कैरिस्मेटिक मतलब किसी एक पर्सन के ऊपर इवॉल्व होता है, जैसे कि सपोज नेहरू और नाउ मोदी। देन द रैशनल लीगल अथॉरिटी, जिसको आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी और आइडियल टाइप ऑफ अथॉरिटी मानते हैं, ठीक है। So first Weber had a neither defined bureaucracy in a clear-cut manner nor even considered it is a part of the language of social sciences. Then the second Weber did not include all officials within his notion of bureaucracy. मतलब bureaucracy में all officials नहीं आते हैं. He refused to include elected or selected officials within this conceptualization of bureaucracy. So only appointed जो bureaucrats होंगे उनको ही वो bureaucracy के concept में लेके आता है. और थर्ड ओवरऑल जिस उसका जो टोटल जो थ्योरी है, जो पर्सपेक्टिव है, वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था। ये जो वेबर्स की आइडियल ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, ये वेबर की आइडियल ब्यूरोक्रेसी में ये कुछ चीजें हैं, लाइक डिवीजन ऑफ लेबर, राइट। देन द अथॉरिटी एंड हायरार्की, देन द फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेसर, देन द फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, देन इम्पर्सनैलिटी होंगी, करियर ओरिएंटेशन होगा, और उसके भी इन डेप्थ क्या क्या होगा, यू कैन जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Again this same hierarchy, specified roles, constraint, then impersonal rules, professional qualifications, seniority or merit. So these are all same characteristic or features of the ideal type of bureaucracy of Weber. Then within bureaucracy we have another one, like instrumentalist theory of Karl Marx, like bureaucracy worked for the bourgeoisie and etc. State is the instrument of bourgeoisie, right? So another one is the functionalist theory of Robert Merton. So ये दोनों theory है bureaucracy में. And जो functionalist theory of Robert Merton है, ये actually written basically as a critique of Weberian ideal type of bureaucracy, right? You can just remember this fact. Then the public choice theory. Within bureaucratic theory, we also have this public choice theory. So public choice theory है actually economics जो एक stream है, उसका application था public administration में, political process institutions में. So methodological individualism एक characteristic है और rational choice होती है, जो public choice होती है वो rational choice होती है, ठीक है. So public choice is defined as Dennis Miller in the economic study of non-market decision making, or simply the application of economics to the political science. In 1960 में ये public choice theory कब आई थी? 1960 में existence में आई थी. 2015 के जून साइकिल में पूछा गया था ये क्वेश्चन. ये जो डेनिस मुलर का जो बुक है ना, द पब्लिक चॉइस अप्रोच टू पॉलिटिक्स, ये बुक इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. So other thinkers like Duncan Black, Anthony Dawes, James Buchanan और Kenneth Arrow, these are some other thinkers within public choice theory. So इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स है? कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, लीजिंग आउट और फ्रेगमेंटेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट्स, कट ऑन पब्लिक स्पेंडिंग टू काउंटर ओवर सप्लाई एंड ओवर स्टॉपिंग, ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है. एक पैथोलॉजिकल थ्योरी भी है. पैथोलॉजिकल थ्योरी मतलब क्या है कि पैथोलॉजिकल सिंड्रोम होता है ना ब्यूरोक्रेसी में, इट इज आइडेंटिफाइड एज टिपिकल सिकनेस है, या कॉमन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में जो सिकनेस होता है, कि ये रेट टैपिज्म भी हम बोल सकते हैं, या जो भी मतलब लेजीनेस, लेथार्जिक प्रोसेसेस, ठीक है. पीटर प्रिंसिपल एक इसमें आता है कि इनकॉम्पिटेंस इज सिस्टमेटिकली रिफाइंड एंड लेवडेड. सो ये जो है
देन द कॉमन एरर्स इन डिसीजन मेकिंग में क्या क्या कॉमन एरर्स हो सकते हैं, निगरो का आइडेंटिफाइड, उसने 4 कॉमन एरर्स आइडेंटिफाई किए थे, लाइक कॉग्निटिव नियर साइटनेस, ओवर सिंप्लीफिकेशन, over reliance on own experience, and the preconceived notions, and the reluctance to decide. So these are 5 common errors. एज जो ड्यूट वाल्डो है उसने ये जो साइमन का वैल्यू फैक्ट सेपरेशन एंड वैल्यू फ्री साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसको क्रिटिसाइज किया था द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948 के उसके बुक में. सो द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948 में किसने लिखा था ऐसा पूछा गया तो ड्यूट वाल्डो आएगा, और उसने साइमन की जो वैल्यू फैक्ट सेपरेशन को अपोज किया था. So then the post-bureaucratic theory, wherein Venice was one of the chief proponent of this post-bureaucratic theory, right? So bureaucratic machine model emerged out of this organization need of the order and procedure. और जो गांधी का मॉडल ऑफ ओसेनिक सर्कल, जो रिसेंटली सीयूटीपीजी के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओसेनिक सर्कल जो कंसेप्ट है किसका है, तो गांधी जी ने दिया था. उसमें वो उनका जो हिंद स्वराज्य बुक है उसमें हमें मिलता है कि उनका जो क्रिटिक ऑफ अर्बन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन और क्रिटिक ऑफ मॉडर्न स्टेट, ये जो है, और वो फेवर क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को फेवर करते हैं, ट्रस्टीशिप को फेवर करते हैं. Then the next important theory is the human relation theory, right? So we started with 1911. Look, this 1911 we started with the scientific management theory. So 1933 में हमें human relation theory मिलती है. 1948 में मिचिगन स्टडीज, कोर फ्रेंच और ओयो स्टेट स्टडीज, स्ट्रैगल. 1954 में हमें हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ मास्लो जो कंसेप्ट है 1954 में मिलता है. 1957 में थ्योरी एक्स थ्योरी वाई जो हम बाद में देखेंगे ये मिलती है. 1964 में हमें मैच्योरिटी जो एर्गेरिस इसका है जो में वो मिलता है. 1965 में हम अचीवमेंट थ्योरी जो है वो मिलती है. और 1966 में हमें मोटिवेशनल हाइजीन जो हर्जबर्ग का जो कुछ हाइजीन फैक्टर्स होते हैं और कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स डिससैटिस्फायर्स एक्सेट्रा जो थ्योरी है हर्जबर्ग की वो 1966 में मिलती है. ठीक है. सो वी आर नाउ हियर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी 1933 में जो एल्टन मोयो ने इस्टेब्लिश किया था स्कूल. सो हमने क्या देखा कि जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी था और उसके पहले जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी था, सो इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में एक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फेवर किया गया था. इकोनॉमिक मैन मतलब एक मशीन मेड ऐसा एक संकल्प था ना. सो हियर इन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी primacy is to human factor over institutional factor, right? So which sees organization as a social system, and the social man in place of the economic man, right? So organization is to be viewed as the social system. Workers are the human beings with all humanly attributes. Informal elements also plays an important role in the overall organizational output. An organization has a social ethics instead of individual ethics. ठीक है, ये कुछ इसके basic premises है. Then this is the Professor Elton Mayo. उनका बुक था कि द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933 में. देन द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945 में. एंड द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1947 में. उन्होंने एक स्टडी भी कंडक्ट किया था, हॉर्थॉर्न स्टडीज, जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी जो थी शिकागो में, वहाँ पे उन्होंने ये स्टडी किया था कंडक्ट बिटवीन 1924 से 32 में. सो किसने किसने सपोर्ट किया था यहाँ देखिए. सो विद इन दैट द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट जो था 1924 से 27 में था. ठीक है. वर्क एनवायरनमेंट और ऑन इंडस्ट्रियल आउटपुट में, वर्क एनवायरनमेंट का इंडस्ट्रियल आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये स्टडी में किया गया था. सो विद इन हॉर्थॉर्न स्टडीज, राइट. देन द रिले असेंबली टेस्ट रूम 1927 से 33 में. देन द ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स का स्टडी किया था 1928 से 31 में. एंड द बैंक राइटिंग एक्सपेरिमेंट 1931 से 32 में. दिस ऑल use some of Hawthorne studies, right? So most of the Hawthorne's experiments were failure, but Mayo used them to give human relation theory, right? And Mayo is also credited to have started with the behavioral revolution in the public administration. So again we after Mayo, most important thinker in that is the Chester Bernard, his theory of organization, right? So to him organization is an organic evolving social system. फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ये कुछ इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक था, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बर्नार्ड का. ठीक है. सो उसमें वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ कोऑपरेटिव सिस्टम, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो होते हैं. एंड द कंसर्न थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, इंड्यूसमेंट, कंट्रीब्यूशन, बैलेंस, द मोरल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन. सो दीज आर ऑल थिंग्स, राइट. सो विद इन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज वन एग्जीक्यूटिव. इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी उसको इंश्योर करनी होती है. सो बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ पर्पस वैल्यूज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, लॉन्ग टर्म कुछ गोल्स होते हैं, और ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके ऊपर डिपेंड करती है. सो ही इज अ बर्नार्ड.
Then the more about Bernard, right? 1886 and 1961 में हम he was influenced by M.P. Follett, right? And other some theorist. उसका जो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 में उसने लिखा था, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1948 में लिखा है. सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ कोऑपरेटिव सिस्टम ऐसे बोलता है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ नेचुरल सिस्टम. सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फेवर करता है, ठीक है. Then the decision making theory, right? Herbert Simon. So this is Herbert Simon. उनका और एक उनका जो बुक था वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1945 में उन्होंने लिखा था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1950 में, और ऑर्गेनाइजेशन 1958 में. देन द सिमोन गिव द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ एक्सेप्टेंस. ये कंसेप्ट किसने दिया है? हर्बर्ट सिमोन ने ही दिया है. वेरी सिमिलर टू जोन ऑफ इंडिफरेंस ऑफ बर्नार्ड. सो बर्नार्ड का कंसेप्ट है जोन ऑफ इंडिफरेंस, और जोन ऑफ एक्सेप्टेंस किसका है? साइमन का है, ठीक है. So bargaining approach or participative approach or public choice approach, these are all approaches. So within decision making approach usually equates administration with the decision making. मतलब administration मतलब decision making होता है. Decisions are made at every stage of the organization and considered as the fundamental steps in the process of policy formulation. So सिमोन का जो decision making theory है वो rational decision making approach है. So Simon views organization as a structure concerned solely with decision making. According to him, decision making is not a specific task of particular part of an organization. Rather, decisions are made at every level of organization. So जो decision making activities है उसके कुछ stages है, 3 stages है. One is intelligence gathering, उसमें search environment for condition, calling for decision, etc. etc. आएगा. Then the design, उसमें possible course of design डिजाइन की जाएगी, जैसे कि इन्वेंट, डेवलप, एनालाइज. एंड द चॉइस, सेलेक्ट पर्टिकुलर कोर्स, और आप जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो दीज आर 3 लेवल्स, स्टेजेस: इंटेलिजेंस गैदरिंग, डिजाइन और चॉइस. याद रखिए इसको. सो सिमन ब्रेक्स डिसीजन मेकिंग विद इन दिस इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी एंड चॉइस. इंटेलिजेंस एक्टिविटी में क्या क्या आ सकता है कि दोज एक्टिविटीज विच वन स्कैन द एनवायरमेंट एंड आइडेंटिफाइज ओकेजन्स टू मेक डिसीजंस. डिजाइन में क्या आएगा? ही रेफर टू फाइंडिंग और डेवलपिंग अल्टरनेटिव ऑप्शंस. And by choice he refer to finding or developing alternative courses of action from those available options. ठीक है. So alternative plan of actions की बात करता है, rational criteria लेके आता है, moderate level rationality की बात करता है, उसको हम bounded rationality कहते हैं. तो bounded rationality ये जो concept है वो किसका है? हर्बर्ट सिमन का है. ये पूछा जा सकता है, पूछा गया है, ठीक है. So उसमें fact value proposition in decision making की बात करता है, give preferences to facts over values. Then the condemned the principles of administration as mere provers and myths, rationality criteria and decision making. ठीक है. एंड ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज मेथोडोलॉजी प्रपोज्ड बाय हर्बर्ट सिमन 2013 में. उसमें बाउंडेड रैशनैलिटी भी एक ऑप्शन था, लेकिन इसका आंसर है लॉजिकल पॉजिटिविज्म. बाउंडेड रैशनैलिटी एक कंसेप्ट है, एक मेथोडोलॉजी नहीं है, ठीक है. सो लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या है? यू कैन जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट एंड गो थ्रू दैट. ये है हर्बर्ट सिमन का बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग. यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट. यू कैन नो मोर अबाउट दिस इन एम लक्ष्मीकांत. सो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन द एस्टैब्लिश डिसीजन क्राइटेरिया, देन द वेट डिसीजन क्राइटेरिया, देन द जनरेट अल्टरनेटिव्स, then they evaluate the alternatives, then choose the best alternative, and they implement the decision, and they evaluate the decision. So these are all 8 characteristics. These are 6 steps. The bargaining approach भी एक है, वो चार्ल्स लिंडबॉम का है. and the participative decision making approach भी एक आता है decision making studies में, ठीक है. ये bargaining approach याद रखिए. Then the next theory is the Frederick Riggs ecological approach, right? So conceptualizing on interactions between administrative system and their environment, मतलब overall environment के regarding. environment मतलब अपना ये environment नहीं जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, मतलब trees and plants etc. not that. environment मतलब in general जो environment, जो temperament होता है, जिसमें public administration को काम करना होता है, उसमें लोग आएंगे, सब जगह आएंगे, other institutions आएंगे, ठीक है. So that environment. So उसका जो एक बुक था एग्रेरियन इंडस्ट्री है, टुवर्ड्स अ टाइपोलॉजी ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन 1955 में उन्होंने लिखा था. द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961 में लिखा था, ठीक है. इसमें हमें इकोलॉजिकल अप्रोच मिलता है. और बाद में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी 1964 में लिखा था. सो जो ही स्टडीड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ फिलीपीन, थाईलैंड एंड इंडिया. Rigg used a structural functional approach in this study, right? Structural functional approach ये पूछा गया था क्वेश्चन. Riggs developed the first model in 1956 by classifying societies into agrarian societies and industrial societies. In 1957, he developed an equilibrium model named as transitia, which represents the transforming societies.
Because of the criticism and limitations, Riggs developed another set of models to analyze the administrative system in the developing countries, that are the fused, prismatic and diffracted model. So they represented, मतलब जो fused है वो underdeveloped nation होता है, prismatic model कहाँ होता है, developing countries में होता है, और diffracted model जो होता है वो developed societies में होता है. ठीक है, ये याद रखिए. और प्राइमरी जो उसने इन्वेस्ट या स्टडी जो किया था वो कहाँ किया था, डेवलपिंग कंट्रीज का किया है. सो जो प्रिज्मेटिक मॉडल कहाँ होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में होता है. ठीक है, प्रिज्मेटिक मॉडल क्या है कि उसमें इंटरमेडिएटरी सोसाइटी है बिटवीन फ्यूज्ड एंड डिफ्रैक्टेड. डिफ्रैक्टेड मतलब डेवलप्ड, फ्यूज मतलब अंडर डेवलप्ड, राइट. सो उसमें हेटेरोजेनिटी आएगी, फॉर्मलिज्म, ओवरलैपिंग क्या है, यू कैन जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ये भी पूछा जा सकता है. पॉलीकम्युनलिज्म आता है इसमें, नेपोटिज्म आता है ओवरलैपिंग में. प्रिज्मेटिक सोसाइटी का सब सिस्टम क्या होता है, साला मॉडल. साला मॉडल इज अ सब सिस्टम ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी. तो साला ऑफिसर गिव्स अ प्रायोरिटी टू पर्सनल इंक्रीजेस इन पावर एंड वेल्थ. मतलब साला क्या होता है, इसका एक कंसेप्ट दिया गया है मैंने. यू कैन जस्ट हैव, they are not going to go depth, right? So they will ask just names and concepts. and उनका एक कंसेप्ट है कि बाजार कैंटीन मॉडल. बाजार कैंटीन मॉडल क्या है कि देयर विल बी डिस्क्रिमिनेशन, फेवरेटिज्म, एक्सप्लॉइटेशन, पॉवर्टी, सोशल इनजस्टिस. प्रिज्मेटिक मॉडल क्या होता है इन ब्रीफ. सो 5 फंक्शनल रिक्विजिट ऑफ एनी सोसाइटी क्या क्या होता है, इकोनॉमिक, सोशल, कम्युनिकेशनल, सिंबॉलिक, पॉलिटिकल. ये कुछ 5 फंक्शनल रिक्विजिट होते हैं एनी सोसाइटी के. ये जो बुक था ना उसका कि एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग सोसाइटीज, उसमें वो प्रिज्मेटिक स्टडी लेके करते आते हैं ना, इसमें हमें मिलता है. देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीरिया, इंडस्ट्री के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. ट्रांजिटिया मतलब इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज होता है वो. फ्यूज्ड सोसाइटी जो है जिसको हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में होती है, उसके क्या मेन फीचर्स है देख लीजिए यहाँ पे. मेन फंक्शंस टू मेंटेन ऑर्डर क्या क्या होने चाहिए. देन डिफ्रैक्टेड सोसाइटी मतलब जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं उसको हम डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज कहते हैं, डेवलप्ड जो होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक यहाँ दिए गए हैं. देन द प्रिज्मेटिक सोसाइटी मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसमें साला मॉडल आता है. मतलब ये देख लीजिए यहाँ पे हम देखेंगे वो क्या पूछ सकते हैं. सो इवन सिस्टम ही कंपोज्ड ऑफ सब सिस्टम्स, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल. ही नेम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम फ्यूज्ड सोसाइटी एज अ चेंबर. मतलब जो फ्यूज्ड सोसाइटी, अंडर डेवलप्ड सोसाइटी होगा उसका जो सब सिस्टम होगा उसको नेम करता है चेंबर. साला इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी. मतलब जो डेवलपिंग कंट्री होगा उसका सब सिस्टम होगा साला. एंड थर्ड इज द डिफ्रैक्टेड सोसाइटी मतलब डेवलप्ड, जैसे कि यूएस, यूके, तो उसका जो सब सिस्टम होगा उसका नाम है ऑफिस. सो ऑफिस, साला एंड द चेंबर. You can just remember these 3 names. So there are some previous year questions if you gone through. Who among the following attached the great importance to the balance between principles of equality and capacity in the political development? Frederick Riggs ही उसका आंसर आएगा. This is the explanation, you can go in depth. Then the theory of prismatic society is based on 2013 के जून में क्वेश्चन आया था, structural functional analysis of public administration in developing countries. So again these some things. Then the Robert King Merton रीडर इन ब्यूरोक्रेसी 1952 में ये बुक लिखा था, यही आता है. देन द जॉन मैरियन गाउस रिफ्लेक्टिंग ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1947 में. एंड रॉबर्ट डहल का साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स आर्टिकल 1947 में. ही asserts that the public administration is not science due to 3 interrelated issues, values, culture and behavior. ठीक है. Then the next theory is the socio-psychological approaches or theories. सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट, ग्रुप डायनामिक्स, ऐसे सब चीजें होती है. सो सोशल मतलब क्या क्या आ सकता है कि फैमिली, रिलीजन, वेल्थ, सोसाइटी, ये सब चीजें. और साइकोलॉजी में फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शन, हमारे जो एटीट्यूड्स होते हैं, बिलीव्स होती है, फेथ्स होते हैं. सो दीज आर थिंग व्हेन वी कंबाइन दिस टू देन सोशियो साइकोलॉजी थ्योरी वी गेट, राइट. So central objective of this approach is scientific study of the human behavior in diverse social environment. So root of the behavioral approach can be traced back to the famous Hawthorne experiment and the resultant emergence of the human relation theory में हमें इसका रूट मिलता है. So motivational approach एक आएगा उसमें. और हमें पता है कि जो अब्राहम मॉस्लो था, मॉस्लो का जो नीड का थ्योरी है ना कि पहले साइकोलॉजिकल नीड्स होती है जैसे कि ब्रीथिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होम्योस्टेसिस एंड एक्सक्रीशन. देन ये अगर जब फुलफिल होती है तो ही हम सेफ्टी के देखते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ मोरालिटी ऑफ द फैमिली, ऑफ हेल्थ एंड प्रॉपर्टी. ये दोनों भी जब फुलफिल हो जाए, साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, देन द लव एंड बिलोंगिंग नीड्स लाइक फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी, ये तीनों भी जब फुलफिल हो जाए, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव बिलोंगिंग
देन द स्टीम, सेल्फ स्टीम जिसको हम कहते हैं, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट बाय अदर्स, एंड लास्ट इज द हाईएस्ट टाइप ऑफ नीड इज फॉर मोटिवेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, morality, creativity, spontaneity, problem solving, lack of prejudices and acceptance of facts. So these are all theories. You can have a screenshot of this whole slide, right? Satisfaction of higher needs comes when the lowest needs are the fully satisfied, right? ये कुछ जो physiological needs है, then security, then belonging, esteem, need for self actualization. फ्रॉइडियन जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस हमें जब मिलता है वहां से वो इन्फ्लुएंस हुआ था, ठीक है, और वो एक थ्योरी लेके आता है, उसमें हायरार्की ऑफ थ्योरी है. दे कैन आस्क यू दिस सीक्वेंस, दे कैन आस्क यू टू क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर दिस सीक्वेंस. सो फिजियोलॉजिकल नीड से सेफ्टी, फिर लव, बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. विद इन दैट दीज आर द सम स्पेसिफिसिटीज, राइट? यू कैन जस्ट हैव दिस. मैनेजमेंट शुड सेटिस्फाई वर्कर्स नीड्स. मैनेजमेंट को ये सब वर्कर्स के नीड्स सेटिस्फाई करने चाहिए तो ही वो अच्छे से काम करेंगे. इसमें हम फ्रेडरिक हर्जबर्ग का जो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, या उसको टू फैक्टर थ्योरी भी बोला जाता है, कि जो मतलब क्या होता है कि इंप्रूविंग द सेटिस्फायर फैक्टर इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन. मतलब जो सेटिस्फायर फैक्टर होते हैं, दीज आर सम सेटिस्फायर फैक्टर्स लाइक अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ. ये एक्चुअली मोटिवेशन देते हैं और सेटिस्फैक्शन बढ़ाते हैं, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है. दीज आर सम जॉब डिससेटिस्फैक्टर्स. इसको हाइजीन फैक्टर भी कहा जाता है, इसको सेटिस्फायर फैक्टर कहा जाता है. So working conditions, co-worker relations, policies and rules, supervisory quality, base wage, salary, these are all called dissatisfiers. You can just have a screenshot of this. ये किसका मॉडल है? मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग का है. ये पूछ सकते हैं, ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट यू कैन हैव अ देन स्क्रीनशॉट आल्सो. देन लीडरशिप मॉडल में हमें रेंसिस लिकर्ट का मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है. लिंकिंग पिन मॉडल उसको कहा जाता है. डगलास मैकग्रोर का द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, इसमें थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई. आई जस्ट फॉरगॉट टू डू दैट. थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के ऊपर एक चार्ट दिया गया है हम लक्ष्मीकांत में. यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट. थ्योरी एक्स इज द कोएर्सिव कंपल्शन होता है उसमें थ्योरी एक्स में, और थ्योरी वाई एक अल्टरनेटिव एजम्पशंस ऑफ इंटीग्रेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, ठीक है. देन क्रिस एग्रियस पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन 1957 में उसने बुक लिखा था. उसमें वो कॉल्ड टोटल चेंज इन स्ट्रेटजीज एज वेल एज एजम्पशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, और प्रीवियस सब ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज को क्रिटिसाइज करता है. देन द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. व्हाट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? कि हमें पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले था वो साइंस लेके आना, प्योर साइंस, इकोनॉमिकल मैन वगैरह वगैरह सब चीजें, डाइकोटोमी चल रही थी. तो फिर से देखो वो बोलेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स डील्स विद द पीपल. एंड अगर आप पीपल की बात करोगे तो सोशल रिलेशंस की बात करोगे तो फिर रिलेवेंस आएगा, वैल्यूज आएगी, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, चेंज, कमिटमेंट, क्लाइंट फोकस, ये सब चीजें आएंगी, ठीक है. सो विच ऑफ द 4 मेजर इश्यूज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर डिबेटेड इन द मिनोबर्ग कॉन्फ्रेंस 1961 में, जो फर्स्ट मिनोबर्ग कॉन्फ्रेंस था, यहाँ पे इसका इमर्जेंस है, याद रखिए. और सेकंड जो मिनोबर्ग कॉन्फ्रेंस था वहां पे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का इमर्जेंस मिलता है हमें. सो विद इन दिस रिलेवेंस, वैल्यूज, इक्विटी एंड चेंज हमें फर्स्ट मिनोबर्ग कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं. 2012 और 2015 के दिसंबर साइकिल में क्वेश्चन पूछा गया था. व्हाट आर द फीचर्स? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ लेस जेनरिक एंड मोर पब्लिक, less descriptive and more prescriptive, less institution oriented and more client oriented, less neutral and more normative. Values की बात करते हैं ना ये लोग. So this new phrase is often equated with the crisis of identity of public administration. मतलब ये जो new phrase है उसको crisis of identity इससे equate किया जाता है. NPA can be seen as the first serious attempts on the part of the practitioners of public administration to give it a stable identity by re-emphasizing its core commitments toward the society. The origin of NPA can be traced back in 1968 में जो फर्स्ट मिनोबर्ग कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें हमें मिलता है जो सिरैकस यूनिवर्सिटी है, ठीक, यहाँ पे हुआ था. दिस इज वन जस्ट सेम थिंग्स. सो ये जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो ड्विट वॉल्डो और फ्रैंक मेरेनी इन्होंने लीड किया था, ठीक है. सो दिस न्यू काउंटर कल्चर एज मोहित भट्टाचार्य कॉइंस 1998 में इसको पुट करता है, प्राइमेसी ऑफ पॉलिटिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे उसको कहता है, ठीक है. सो ये जो मिनो कॉन्फ्रेंस 1968 में हुआ था, देन 1988 में हुई थी, और थर्ड वाली 2008 में, ठीक है. देन द सोशल इक्विलिटी की बात करते हैं, नो टू वैल्यू न्यूट्रलिटी, राइट, नो टू पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, क्लाइंट ओरिएंटेशन है, लेस हायरार्किकल, लेस फॉर्मल ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है.
सो ड्यूड ऑल्डे की क्या बुक्स थे? द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948 में इन्होंने लिखा था, आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1953 में, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ ट्रबुलेंस 1971 में इन्होंने लिखा था, ठीक है। और जो फ्रैंक मैरिनी है, कोऑर्डिनेटेड फर्स्ट मिनोविक कॉन्फ्रेंसेस टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोविक पर्सपेक्टिव 1971 में इन्होंने लिखा था, समराइजेस द थीम्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द 5 हेड्स। क्या क्या कैसे समराइज करते हैं? रिलेवेंस, वैल्यूज, सोशल इक्वलिटी, चेंज एंड क्लाइंट फोकस। 2019 के जून साइकिल में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था और दिसंबर साइकिल में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। एक बार इनका ये बुक पूछा गया था टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो फर्स्ट मिनोविक जो कॉन्फ्रेंस थे इसके रिगार्डिंग, और ये कुछ इन्होंने लीड किया था ना न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ गया था। देन द हर्टबर्न कॉफमैन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन एंड पॉलिटिकल पावर 1969 में, द फॉरेस्ट रेंजर अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1960 में उन्होंने लिखा था, ठीक है। सो इसका अगर एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस देखा जाए इवेंट्स का, तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हमें क्या क्या मिलता है? ये भी पूछा गया था 2014 के जून में। द हनी रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन फॉर पब्लिक सर्विसेज पहले आएगा, तो इसके बाद फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस ऑन थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, देन द मिनोविक कॉन्फ्रेंस आएगा, एंड लास्ट देयर विल बी टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मिनोविक पर्सपेक्टिव। एक बुक लिखा गया था इसके कॉन्फ्रेंस के बाद, तो 1971 में, ठीक है, ये आएगा। देन द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, हमें तो पता है कि ये वैल्यूज की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ अगर ह्यूमन को जब हम इंपॉर्टेंस देंगे तो थोड़ा बहुत इकोनॉमी पीछे हट जाता है, तो सोशल मैन की बात करते थे, ठीक है। तो इकोनॉमी जब पीछे हटेगा तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इकोनॉमी की बात करने स्टार्ट करता है कि ये जो थेचर, मार्गरेट थेचर या जो भी उनकी जो पॉलिसीज थी 1970s में, इसका इवोल्यूशन मिलता है हमें। ये पूछा गया था कि कब इवोल्यूशन हुआ है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का? 1970s में। जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो OECD नाम के ऑर्गेनाइजेशन है, जब सब डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज इसमें आते हैं, वो ये बात करते हैं। जो सेकंड मिनोविक कॉन्फ्रेंस 1988 में होता है, रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट बाय ऑब्सकॉन एंड गैबलर, 1992 में इन्होंने बुक लिखा था ये, ठीक है। एक ड्राइविंग फोर्स ग्लोबलाइजेशन वगैरह सब चीजें जो बाद में इवॉल्व होती है। सो उसमें क्रिस्टोफर हुड एक मेजर थिंकर है, याद रखिए इसमें। So unlike the traditional Weberian and Wilsonian paradigm of public administration, new public management calls for a paradigm shift in public management. मतलब 3 E's की बात करेंगे, efficiency, economy and effectiveness. Efficiency, economy and effectiveness, right? So इसमें क्या क्या आएगा कि minimum government, debureaucratization, decentralization, market orientation of public services, contracting out, privatization, performance measurement, etc. etc. ठीक है। So जो हुड था उसने क्या किया था कि एनपीएम एक 4 मेजर 4 मेजर मेगा ट्रेंड्स इसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, जैसे कि टू ओवर पब्लिक स्पेंडिंग एंड स्टाफिंग, शिफ्ट टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन एंड क्वासी प्राइवेटाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेशन एंड द इंटरनेशनल एजेंडा। And there are some major components of new public management like hands-on professional management in public sector, explicit standards and measures of performance, greater emphasis on output control, shift to disaggregation of units in public sector, shift to greater competition in public sector, stresses on the private sector styles of management practices, and stresses on greater discipline and parsimony in resource use, ठीक है। So again Nicholas Henry जो था he identified 5 fundamentals in known as the 5A of new public management. क्या क्या थे? alertness, agility, adaptability, alignment, accountability, right? और जो पैट्रिक डेनलीवी था उन्होंने भी क्या कहा था? 3K components of new public management. कौन से? disaggregation, competition and incentivization. And there are some silent features of public administration or public management. New public management की कुछ silent features भी है. You can just have a screenshot, right? Revamping of organizational structure, empowerment of citizens, greater autonomy for public sector management, application of rigorous performance measurement technique, disaggregation of public bureaucracy, cost cutting, goal orientation, use of the quasi market contracting out techniques, emphasis on managerial support services, organizational and spatial decentralization, etc. etc. इसके कुछ implications क्या थे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के? और डेविड ऑसबोर्न का 1951 में टेड गैबलर इनके साथ मिलकर उन्होंने रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट हाउ द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इज ट्रांसफॉर्मिंग इन पब्लिक सेक्टर एक बुक लिखा था। ये जो बात का जो बुक होता है हमें ये मिलता है 1992 में, और ये सब कुछ है, you can just have a screenshot. Then after new public administration we have the new public management and now new public services. New public services NPS जिसको हम कहते हैं, न्यू पब्लिक सर्विसेज, सर्विंग नॉट स्टीयरिंग, इनका एक टैगलाइन क्या है? सर्विंग एंड नॉट स्टीयरिंग। तो हमें पता चलता है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक वैल्यूज
को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, देन द इकोनॉमी एफिशिएंसी इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, और फिर अगेन वैल्यूज की बात करेंगे, सर्व करना है लोगों को, डेमोक्रेसी की बात करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, न्यू पब्लिक सर्विसेज में। सो देयर आर सम फीचर्स लाइक सर्व रेदर देन स्टीयर, फोकस, पब्लिक इंटरेस्ट, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, कम्युनिटी एंड सिविल सोसाइटी की बात करेंगे, सर्व सिटीजन नॉट अ कस्टमर, देन डोंट ट्रीट देम एज अ कस्टमर, दे आर योर सिटीजन्स, दे हैव द राइट्स, राइट। कॉम्प्लेक्स अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक वैल्यू रेदर देन प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी, ट्रस्टीशिप एंड स्टीवर्डशिप इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पार्टिसिपेटरी, कोलैबोरेटिव, रिस्पॉन्सिव एंड ओपन एंड एक्सेसिबल गवर्नमेंट की बात करेंगे, ठीक है। सो उसमें इंपॉर्टेंट बुक यही आता है कि फादर ऑफ न्यू पब्लिक सर्विस किसको कहा जाता है, रॉबर्ट डेनहार्ट, राइट, ये जो बुक उन्होंने लिखा था द न्यू पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। अगेन दिस ऑल थिंग्स, राइट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्शन ओरिएंटेशन 1987 में उन्होंने लिखा था, थ्योरीज ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन 1984 में, रिवाइटलाइजिंग ऑफ पब्लिक सर्विसेज 1987 में। देन द जेनेट डेनहार्ट along with Robert Denhart led the NPS movement. माइकल सैंडल जो है कम्युनिटेरियन है, शेयर्ड पब्लिक वैल्यूज पार्ट ऑफ द एनपीएस। सो व्हेन वी कंपेयर ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड न्यू पब्लिक सर्विस, सो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क हमें क्या मिलेगा, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क पॉलिटिकल थ्योरी से आता है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का इकोनॉमिकल थ्योरी, और न्यू पब्लिक सर्विसेज का डेमोक्रेटिक थ्योरी में मिलता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट का इसमें रोविंग है, इसमें स्टीयरिंग है, इसमें सर्विंग है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स की क्या है, पॉलिटिकल लीडर्स को ये अकाउंटेबल होंगे, जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में कस्टमर्स को, और न्यू पब्लिक सर्विस में मल्टीफेसिटेड होंगे, दोनों को भी और भी कोई होगा तो। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसमें हायरार्किकल होगा, इसमें डिसएग्रीगेटेड होगा, इसमें कोलैबोरेटिव होगा। मोटिवेशन इसमें इकोनॉमिक मैन कंसेप्ट आता है, इसमें एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट आता है, इसमें स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक इंटरेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स जैसे डिफाइन करते हैं, एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और ये डायलॉग बिटवीन पीपल। Achieving policy objectives, government agencies, incentives to private sectors, and building coalition between them. So these are all when we compare all these three approaches, right? Let's start for our. So within 50 minutes we have covered all the theories, right? So we are going to begin for part B, right? So basic concepts and principles in public administration. So we are not going to go in depth. So you are going to have just screenshots of these all slides, or you can visit the M Lakshmi card, but here we are just going to name the major components, so they can ask for MCQs. So good governance, what is good governance? World Bank in 1992 defines the good governance as epitomized by predictable, open, enlightened policy making, a bureaucracy imbued with the professional ethos, acting in a furtherance of the public good, a rule of law, transparent processes, strong civil society, participating in public affairs, right? So उसमें strengthening accountability, public debate, grassroots and non-governmental organization को भी importance दिया जाएगा, ठीक है। So these are all things, right? Equality and inclusivity, of all citizens, citizen-centric processes, responsiveness of the institutions and process of all stakeholders, right? Greater participation by citizens, accountability of decision makers in the public, transparency through access of information, effectiveness and efficiency of process and institutions, rule of law, fair and impartial legal frameworks होंगे, ठीक है। So there are some key 4 elements like public sector management, accountability, legal framework for development, and information and transparency. So these are all things will be there, right? These all about good governance. Then the post cop वो लिखा हमने already देखा है, ठीक है। 7 main functions क्या क्या होंगे of organization, planning, organization, staffing, directing, coordination, reporting, budgeting, etc etc. Then the organization, right? Organization क्या होता है, उसके एक basic definitions ये सब है, you can just have a screenshot. Characteristic क्या होंगे organization के, you can have a screenshot or you can visit the M Lakshmi Khan, right? So Gulick identified 4 bases of organization, namely purpose, process, 4 P's हमने देखे हैं, हमने already देखा है ये सब concepts, right? When we were discussing thinkers. So here we are again just revisiting them. कम्युनिकेशन, राइट? कम्युनिकेशन का चेस्टर बर्नर का इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एक स्टेटमेंट पूछा गया था 2016 के जुलाई में। बर्नर जो है वो और कम्युनिकेशन को क्या बोलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन से ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव किए जाते हैं। सो अथॉरिटी लाइज विद द सबऑर्डिनेट हु एक्सेप्ट, राइट? सो जोन ऑफ इंडिफरेंस की बात करता है चेस्टर बर्नर। साइबरनेटिक्स, कार्ल ड्यूश का हमने कंसेप्ट देखा था जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का वीडियो देख रहे थे। साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, साइबरनेटिक्स मतलब
So or the informal channel of communication is also known as the Graphian. Informal ये पूछा जा सकता है, informal channel of communication क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में? Graphian. So ये कुछ डेफिनेशन है उसके. हेनरी फॉयल उसको कैसे कंट्रीब्यूट करता है, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट सिमन, नॉर्बर्ट विगनर. सो यू कैन जस्ट हैव दिस ऑल थिंग्स. काइबरनेट्स ये लेके आता है, ठीक है, ग्रीक टर्म से ओरिजिनेट करता है. देन द कंट्रोल, ये कुछ डेफिनेशन है कंट्रोल्स के. To sum up, control means checking and verifying actual performance against established standards to ensure adequate progress and satisfactory results. So उसमें contribution किसने किया है कंट्रोल इसमें? MP फॉलेट है, कुछ क्लासिकल थिंकर्स भी है, MP फॉलेट है, बिहोरलिस्ट भी है, ये सब कुछ थिंकर्स है. देन द लीडरशिप, राइट. सो लीडरशिप को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ये सब कुछ डेफिनेशन है उनके. यू कैन जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट. MP फॉलेट का रोल बहुत बड़ा है लीडरशिप को डिफाइन करने में. लीडरशिप का क्या पोजीशन, पर्सनालिटी, फंक्शन क्या क्या होते हैं. देन द मिलेट एंड द कार्ड्स एंड कान. सो मोटिवेशन थ्योरी हमने ऑलरेडी देखी है, राइट. मास्लो का मोटिवेशन थ्योरी हमने देखा है, हर्जबर्ग का देखा है, सेटिस्फायर, डिससेटिस्फायर, ठीक है. एक डेफिनेशन है मोटिवेशन की. मास्लो का हायरार्किकल नीड्स और हर्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी जो है उसको कंपेयर किया गया है. यू कैन जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट. अदर कुछ मोटिवेशन की थ्योरी है, जैसे कि अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी है डेविड मैकलेनर्ड की. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थ्योरी है BF स्किनर की. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स पीटर डकर. मैच्योरिटी थ्योरी चार्ल्स एग्रियस. थ्योरी ऑफ एक्शन थ्योरी वाई डॉगलस एम ग्रेनर. एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ जो है विक्टर वर्नम की. इक्विटी थ्योरी है जे स्टेस एडम्स की. परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन थ्योरी है पोर्टर एंड लॉलर की. गोयल सेटिंग थ्योरी है एडविन लॉक की. ERG एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ नीड्स थ्योरी है. These are all theories. Theories head भी है विलियम ओची एंड अल्फ्रेड जगनर की. कब कब कौन सी थ्योरी आई थी, यू कैन हैव जस्ट स्क्रीनशॉट और यू कैन विजिट एम लक्ष्मीकांत, राइट. सो हायरार्की was emphasized by all classical thinkers from Weber, Fayol, Gulick, Urwig, Munne, Riley, etc. all these thinkers. हायरार्की मतलब स्केलर चेन, याद रखिए. सो इसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे ना हायरार्की के, वो क्या है, यू कैन जस्ट हैव स्क्रीनशॉट. एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, करस्पॉन्डेंस है, ठीक है, यूनिट ऑफ कमांड आएगी हायरार्की में. हायरार्की को कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ दीज आर सम डेफिनेशंस. प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की मतलब A के नीचे BL, B के नीचे A से इसको सबऑर्डिनेट, ठीक है. एक याद रखिए कि फॉयल का जो हायरार्की है उसमें गैंगप्लैंक का कंसेप्ट है. गैंगप्लैंक क्या है, फाइनली इट शुड बी नोटेड हियर दैट, मतलब सॉरी गैंगप्लैंक का जो कंसेप्ट है ना, ये क्या है, ये याद रखिए इसमें कि thus the concept of gangplank stands for establishing a communication channel with the employee at the same level, that is horizontal communication. सेम लेवल मतलब देखो एक सेम लेवल, ठीक है. ए सबसे प्राइमरी है, ठीक है. ए को सबऑर्डिनेट BL है, B को सबऑर्डिनेट C और L को सबऑर्डिनेट M है, C को सबऑर्डिनेट D. सो सेम लेवल पे को आएगा, E को सबऑर्डिनेट F है, O को सबऑर्डिनेट P है. तो सपोज F और P सेम लेवल पे है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको गैंग प्लैंक कहते हैं. या G और Q के बीच में होगा, या E और O के बीच में, या D या N के बीच में, या C या M या B या L, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा एक सेम लेवल पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा, उसको गैंग प्लैंक. गैंग प्लैंक का कंसेप्ट किसका है, फॉयल का है. यूनिट ऑफ कमांड पूछा जा सकता है कि यूनिट ऑफ कमांड प्रिंसिपल इज वेयर देयर इज अ वन सुपरवाइजर इश्यूइंग गाइडेंस फॉर ईच स्टाफ पर्सन टू अवॉइड कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन. मतलब एक ही तरीके से डायरेक्शन आएगा. द प्रिंसिपल ऑफ यूनिट ऑफ कमांड मेनली इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी. टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क रिक्वायर्स डायलेशन ऑफ यूनिट ऑफ कमांड, ठीक है, ये हमें पता है. सो उसके कुछ डेफिनेशंस है. फॉयल की डेफिनेशन क्या है, फॉर एनी एक्शन व्हाटएवर एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. ये है यूनिटी ऑफ कमांड. सो ये कुछ फेवर में आर्गुमेंट है यूनिटी ऑफ फॉयल के. फेवर उसको सॉरी हेनरी फॉयल उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, और मिलेट इसको अपोज करता है. ये कुछ अगेंस्ट में है. सो यू कैन जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और विजिट एम लक्ष्मीकांत. देन द स्पैन ऑफ कंट्रोल. स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल asserts that organizational unit should have a small number of employees reporting to the supervisor, right? So span of control depends upon the age of organization, personality of supervisor, caliber of subordinate, organizational structure, delegation, functions क्या होंगे, time, space, personality. These are all determining factors of span of control, right? So the principle of span of control means the number of subordinates or the units of worker that an officer can personally direct, control, supervise. It is also known as the span of supervision or span of management. According to Dimmock and Dimmock, the span of control is the number and range of direct, habitual communication contacts between the chief executive of an enterprise and the principal fellow officers. So relationship with hierarchy, these are some limits. You can just
go through that. Then the authority and responsibility. Authority मतलब क्या होता है कि पावर को जब लेजिटिमेसी मिलती है तब उसको हम अथॉरिटी कहते हैं, ठीक है. So there are three sources of authority within public administration. One is law, then the delegation, and then the delegation. According to Millet, administrator needs sufficient authority in the following four areas: to decide objective and purpose of the activities, to create and organize, to determine budgetary requirements, etc. etc. You can just go through this or you can visit the M. Lakshmikant. Max Weber classify करता है authority को कैसे? Traditional, charismatic and legal rational, right? और Amitai Edzoni भी कैसे gave a threefold classification of authority: coercive, normative and intertenitive, right? So authority जो होगी वो positional theory of authority एक आती है जिसमें मैक्स वेबर, हेनरी फयोल वगैरह लोग आते हैं, and the acceptance theory of authority में आती है, ठीक है. So you can just go through this acceptance theory and positional theory. Then the responsibility, right? So authority में ही three types भी होंगे: line authority, step authority and functional authority. और responsibility क्या है? You know that responsibility denotes an obligation to individual to carry out certain duties, right? So responsibility is the obligation of person to achieve the results mutually determined by means of participation by his superiors and himself. You can just have a screenshot or you can visit M. Lakshmikant for this purpose. Then the coordination. Coordination is an essential part of administration. According to Munne, coordination is the first principle of organization and includes within itself all other principles which are subordinate to it and through which it operates. Coordination को कितना ज़्यादा importance दिया गया है देखो. So उसके types होते हैं: internal and external coordination, horizontal and perpendicular coordination, procedural and substantive coordination, ठीक है. उसका कुछ importance है, उसके कुछ definitions दिए हैं. White कैसे define करते हैं L.D. White coordination को? Coordination is a process causing disjunct elements in a concentration on a complex forces and influence which cause the mutually independent elements to act together, ठीक है. थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेशन जो थ्योरी में देखने को मिलती है उसमें गुलिक का कुछ कंट्रीब्यूशन है, एमपी फॉलेट का क्या कंट्रीब्यूशन है, जेडी थॉमसन का क्या कंट्रीब्यूशन है. यू कैन जस्ट विजिट एम. लक्ष्मीकांत और यू कैन हैव स्क्रीनशॉट हियर. हार्लैंड, क्लेवर्ड और मैकफार्लैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. देन द सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिलीगेशन. हमें देखो L.D. White कैसे डिफाइन करता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फ्रॉम अ लोअर लेवल टू हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द सेंट्रलाइजेशन and the opposite is decentralization. Foyle क्या कहता है? Everything that goes to increase the importance of the subordinate role is a decentralization. Everything which goes to decrease it is a centralization. उसमें फिर political decentralization आएगा, territorial decentralization आ सकता है, functional decentralization आ सकता है, ठीक है. Delegation को ऐसे डिफाइन किया इन लोगों ने. तो हम देखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब हम देख रहे थे उसमें भी हमने ये डिफाइन किया था कि डिकॉन्सेंट्रेशन क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट टास्क आर शिफ्टेड फ्रॉम ऑफिसेस इन द कैपिटल टू दोज ऑफ द रीजन्स और लोकल डिस्ट्रिक्ट. मतलब वो टास्क है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही रहेगी. बस सपोज दिल्ली से ऑपरेट किया जा रहा था तो अभी वो मुंबई से ऑपरेट किया जाएगा या किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा, सपोज पुणे है या कोल्हापुर है तो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से वो ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है. सो वो टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही रहेगी दिल्ली में, लेकिन बस टास्क डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, अलग अलग जगहों से ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन और डिकॉन्सेंट्रेशन. देन द डेलीगेशन. डेलीगेशन मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शिफ्टेड टू अ सेमी ऑटोनोमस बॉडीज. यहाँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी लेकिन अभी शिफ्ट की गई है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर. सो दैट इज कॉल्ड एज अ डेलीगेशन. और शिफ्ट की गई है लोकल गवर्नमेंट पे, शिफ्ट की गई है म्युनिसिपैलिटी पे, दैट इज कॉल्ड एज अ डेलीगेशन. और सबसे इंपॉर्टेंट है डिवोल्यूशन. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर सम डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी टू लोअर लेवल्स. मतलब वो पूरा डिसीजन मेकिंग, देखो डिलीगेशन में और डिकॉन्सेंट्रेशन में डिसीजंस तो सेंट्रल लेवल पे ही लिए गए थे, बस यहाँ पे उसका लोकेशन चेंज किया गया था, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट की गई थी और यहाँ पे पूरा पावर ही दे दिया है. तो डिवोल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, कि पूरा जो पावर था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था वो अभी लोकल गवर्नमेंट को दिया गया है कि आप ही लीजिए डिसीजन. So this is known as the deconcentration, delegation, devolution. You can just have a screenshot of this whole slide. Then the supervision, right? Henry कैसे define करते हैं? Supervision is the direction accompanied by the authority of the work of others. Supervision में क्या क्या phases हो सकते हैं? FM marks उसके कुछ phases निकालता है, like substantive है और technical, institutional और objective, personal और human, right? जेडे मिलेट है सुपरविजन के टू प्राइमरी पर्पसेस बोलता है वो: achieve coordination among the component parts of an agency and third is ensure that each unit of agency accomplishes the task that each have been assigned, right?
उसके कुछ फंक्शंस होते हैं सुपरवाइजर्स के, यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। Then the line and staff. Line मतलब make a defined policy, carry out of crucial jobs for the organization, vertical hierarchy, scanner chain, etc. etc. और staff क्या है, line को support करता है. So support and advise the line with specialized expert knowledge, horizontal hierarchy, और यहाँ पे vertical hierarchy मिलती है line में. So उसका meaning यहाँ पे दिया गया है. LD White, the business of government is transacted by means and elevate organization held together in universal supervisor subordinate relationship, etc. etc. ठीक है. सो अलग अलग स्कॉलर की व्यूज क्या है इसके ऊपर लाइन एंड स्टाफ पे. सो लाइन एजेंसीज में क्या क्या आएगा, द फर्स्ट थ्री आर फाउंड इन ऑल, मतलब लाइन एजेंसी मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा आएंगे लाइन एजेंसीज में, ठीक है. So line agencies have following characteristic. They directly carry out functions of accomplishing the substantive objection of the organization. They are given authority to make decisions and issue orders. They directly come in contact with the people and provide them various services, regulate, conduct, collect taxes, etc. etc. ठीक है. So they make the decisions, they take the responsibilities, interpreting and defending policy and operations, and maintaining production and seeking efficient economy. ये सब line agencies होती है. और इनको जो सपोर्ट करने का काम है वो स्टाफ एजेंसीज करती है. जैसे कि सपोज यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है तो यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी आएगा, उसको सपोर्ट करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आएंगे, कैबिनेट कमिटीज, प्लानिंग कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस कमीशन एक्सेट्रा, स्टाफ इंस्पेक्शन यूटिलिटी, फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी. ये दीज आर ऑल पीपल सपोर्ट दिस ऑल गोल्स और ऑब्जेक्टिव, राइट. सो उसमें स्टाफ एजेंसी होगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं कि दे परफॉर्म सेकेंडरी और सपोर्टिव फंक्शंस, दैट इज असिस्ट the line accomplishing their organizational purposes. They do not have the authority to make decisions and issue orders and directives. Their role is advisory in nature and they exercise some influence rather than authority. They do not come in contact with the people directly. They function anonymously according to the Revenue Committee of USA में उन्होंने जो define किया था, staff should have a passion for anonymity. मतलब staff को हमेशा anonymous रहना चाहिए, इसका वो बोलते थे. According to Munne, the staff agencies perform three functions: informative functions, advisory function, and supervisory function. So, जो फाइजर था उसने क्या किया था कि स्टाफ एजेंसीज को क्या क्या फंक्शन होते हैं कि एडवाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, फैक्ट फाइंडिंग, कॉन्टेक्ट एंड लाइसेंस, एसेटिंग द लाइन, एक्सरसाइजिंग द डेलीगेटेड अथॉरिटी. एलडी व्हाइट ने भी कुछ स्टाफ एजेंसीज के फंक्शंस आइडेंटिफाई किए थे. यू कैन जस्ट हैव द स्क्रीनशॉट. There is going to be general staff, technical staff, ठीक है, auxiliary staff. Auxiliary staff मतलब थर्ड लेवल का स्टाफ आता है, मतलब हाउस कीपिंग, सर्वेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. These are all things. Auxiliary staff में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में auxiliary staff में क्या क्या आएगा, लॉ मिनिस्ट्री आएगी, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सर्विस जिनका काम है, मकसद है. So last major component is a public private administration. So administrative thinkers like Henry Fayol, M.P. Follett, Luther Gulick, Linda Ludwig do not make a distinction between public and private. Public and private में ऐसा कुछ नहीं है. पब्लिक कॉर्पोरेशन हो या प्राइवेट कॉर्पोरेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन सेम ही रहता है, उसका काम ही सेम रहता है, उसका मैकेनिज्म प्रोसीजर भी सेम रहता है. ऐसा कौन कहते हैं? फयोल, फॉलेट, गुलिक, उर्विक एक्सेट्रा लोग, ठीक है. सो द मैनेजरल टेक्निक्स 2015 के दिसंबर में क्वेश्चन आया था. द मैनेजरल टेक्निक्स एंड स्किल्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, बजटिंग एक्सेट्रा सो ऑन और एज पब्लिक एंड प्राइवेट में भी ये सब ही होता है. बोथ आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की एंड स्कैलरशिप. Governmental activities are not undertaken to simply to maximize profit but to promote social welfare. Due to this feature, public administration is generally characterized by the absence of profit motive. 2013 के रीजन और assumption में ये दो स्टेटमेंट्स दिए गए थे और दोनों भी सही है. So these are some mixed liners. Like H. Walker has divided public administration into multiple scope. He distinguished between public administration and the administration theory based on their functioning and application of organization. 2014 की जो में आया था. Peter Self claimed that the political science and public laws resulted in the development of public administration. 2016 के जुलाई में. The correct sequence of the evolution of different approaches of public administration: institutional approach, then the behavioral approach, then the system approach, and last come the public policy. पहले था institutional, then the behavioral, then the system approach, and last में था public policy approach. ये chronological order में पूछा गया था 2017 के जनवरी में. Guy Peter, in his work The Future of Governing, while rejecting the traditional way of public administration, proposed some new models: market model, participatory state model, flexible government model, and deregulated government model. 2017 का नवंबर में क्वेश्चन आया था. The book The Intellectual Crisis in American Public Administration deals with, कहाँ से डील करता है? विंसेंट ऑस्टमैन ने 1974 में एक बुक लिखा था
सेंट्रल थीम क्या है इसका? पब्लिक चॉइस अप्रोच है उसका, 2019 के जून में क्वेश्चन आया था. So these are some important books, right? So you can just visit first chapter of M. Lakshmikant, or you can just have a screenshot here. So these are some important books they can ask. So within public administration, either they are going to ask you major books, or who propagated this major theory, or which thinker comes from which theory, और मेजर प्रिंसिपल्स कैरेक्टरिस्टिक कुछ कंसेप्ट होगा तो वही पूछेंगे. तो वुड्रो विल्सन के बुक से कि बुक से आर्टिकल्स हो सकते हैं. द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में, कांग्रेशनल गवर्नमेंट 1885 में, द स्टेट 1889 में उन्होंने लिखा था. कुडनाव का बुक था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900 में लिखा था. एल डी व्हाइट का इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में लिखा था. इंपॉर्टेंट बुक है, 2012 के दिसंबर साइकिल में क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, ये जो एल डी व्हाइट का बुक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. डब्ल्यू फिल्बर का बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में लिखा था. टेलर की बुक है अ पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. फॉयल के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, द एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ स्टेट है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है. मुंडन रिले के ऑनवर्ड इंडस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वेबर का द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ बुक्स है. गुलिक एंड उर्विक के द पेपर्स ऑन साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने जो कोएडिट किया था 1937 में भी क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, उर्विक का पर्सनल बुक्स क्या है? मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द मेकिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट, द पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट. रेम्पी फॉलिट के द न्यू स्टेट, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ बुक्स है. आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू दिस ऑल अदर बुक्स, यू कैन जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट, राइट? So this first page was important books. These are also some important books by Elton Mayo, the human problems of industrial revolution, the social problems, the political problems. चेस्टर बर्नार्ड का द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, इंपॉर्टेंट बुक है, पूछा जा सकता है, पूछा गया है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट. एफ एम मार्क्स का एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट. हार्बर्ट सीमन का द प्रोवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1947 में, उसमें वो क्रिटिसाइज करता है ना साइंटिफिक थ्योरी और क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को. द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज आर ऑल बुक्स बाय हार्बर्ट सीमन. रॉबर्ट ढार का द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स एक बुक है. मैस्लो का जिसमें वो मोटिवेशन थ्योरी की बात करता है, डायनामिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी. सो दिस 2 पेजेस और इंपॉर्टेंट बुक. दीज आर सम अदर बुक्स, हर्बर्ग्स, ये सब देख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स है. यू कैन जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल बुक्स. दीज आर सम अदर बुक्स. ठीक है, these are some other books. And these are some other concepts like Arthashastra, Republic, Politics, The Prince, Leviathan, Treatise of Civil Government, Management of Government, Bureaucracy, etc. These are, they can ask on these questions also, these themes also, representative bureaucracy, government administration, etc., etc. So here we dealt with complete public. So here we completed our this whole lecture. In part A, we discussed all the theories, major approaches, and while discussing theories and approaches, also we dealt with all major proponent or thinkers within public administration. So they are going to mostly ask you these things only, right? So who propagated this theory, or major books by that thinkers. So major books, major theories, their major propagators, major books. ऐसे कुछ आप notes बना सकते हो. Then the second part we dealt with the major concepts, right? So कौन से concept को कैसे define किया जा सकता है, reason assertion में आ सकता है. ठीक है, span of control क्या है, definition वो पूछ सकते हैं, unit of command की definition पूछ सकते हैं. ठीक है, so motivation क्या है, उसमें कुछ basic concepts पूछ सकते हैं. So in part B we discussed with all major concepts, right? So they are going to ask you mostly, there are going to be 10 questions, that is means 20 marks on public administration, mostly going to be factual, superficial questions, right? So you can analyze previous year questions of public administration. Also I'm going to put one video on that also, but later, right? So thank you again. Please subscribe to my channel, Being Political with Saurabh Patil, and please share this link to your all friends and colleagues. Thank you all.